नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। बीबीसी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी विवाद देखने के लिए मिला। इस बीच आपको बता दें, जब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसी मामले को लेकर जो है एक सवाल पूछा अमेरिका से, तो व्हाइट हाउस की तरफ से जो जवाब आया उसने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका जो कि भारत के साथ हमेशा से खड़ा रहा है और कहीं ना कहीं भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो है रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, और ये उनके बयान से ही समझ आया, स्पष्ट हो गया। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर अब अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता Narendra Modi and how the US has compromised on some of its values, and the BBC just released a documentary on Modi on how he had butchered, and the report was just released. It was a government report. BBC just released it. It was made by a former secretary, in which he has even mentioned higher number of deaths, higher numbers of women raped, and it was just done right under the nose of Narendra Modi. I never challenged the strategic interest of the US with India, but I regret the fact that since last 8 years that I've been covering the State Department, I have not seen once an official standing here at UC condemning Narendra Modi himself individually, not just as a Prime Minister, but individually his acts. And I'm sure the US officials were aware of it as well. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share, the values that are common to American democracy and to Indian democracy. India, of course, is the world's largest democracy. It's a vibrant democracy, and again, we look to everything that ties us together, and we look to reinforce all of those elements that tie us together. So my godfather is an Indian as well, by the way. So I have all the respect for India. Don't get me wrong, anything. But I just regret the fact that how is it possible that the State Department officials who were posted there at that time did not know that this individual who's a former chief minister, it happened right under his nose. 2,000 people were burned alive. Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India as two thriving, vibrant democracies. When we have concerns about actions that are taken in India, we've voiced those. We've had an occasion to do that, but we want first and foremost to reinforce those values that are at the heart of our relationship. One follow-up, but do you think that such foreign policy has affected President Biden's Indian voters here in the US, though? We don't think about it through those terms. I don't think about domestic politics, and neither does anyone in this building. नेट प्राइस से जब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए रिपोर्टर की बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने जवाब में कहा कि मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े वृत्तांत से परिचित नहीं हूं, हालांकि मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं जो अमेरिका और भारत के दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्रों के बीच है। एक प्रेस ब्रीफिंग के संबोधित करते हुए प्राइस ने स्थानीय समय अनुसार ये कहा कि ऐसे कई चीजें हैं जो भारत के साथ अमेरिका की वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करती है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और असाधारण रूप से गहरे लोगों के बीच संबंध शामिल है। इस दौरान नेट प्राइस ने अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों को भी रेखांकित किया और भारत के लोकतंत्र
लोकतंत्र को एक जीवंत बताते हुए कहा कि हम हर उस चीज को देखते हैं जो हमें एक साथ जोड़ती है। हम उन सभी तत्वों को मजबूत करने के लिए तत्पर है जो हमें एक साथ बांधते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि अमेरिका भारत के साथ जो साझेदारी साझा करता है वो असाधारण रूप से गहरी और दोनों राष्ट्र जो है उन मूल्यों को साझा करते हैं जो अमेरिका लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र के लिए सामान्य है। पिछले हफ्ते यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया था और बीबीसी विचित्र जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको खुद को दूर कर लिया था इस बयान से ही, ये कहते हुए कि वो अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। सुनक ने यह टिप्पणी पाकिस्तान मूल के सांसद सदाम हुसैन द्वारा ब्रिटिश संसद में उठाए गए विवादित डॉक्यूमेंट्री पर की है। नेट प्राइस ने यह भी कहा कि हमने लंबे समय से दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय स्थिरता की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अपने दम पर खड़े हैं और हम उन्हें शून्य योग के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वार्ता की गति, गुंजाइश और चरित्र दो देशों का मामला है जिसे इस मामले में नहीं डालना चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पाकिस्तान भी अब सवाल करने लगा है, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। पाकिस्तान जो कि हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहता है, भारत के खिलाफ जो है चीजें और भारत की केंद्र सरकार पर कई सारे मुद्दों को लेकर निशाना साधते रहता है। और जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो कभी इमरान खान तो कभी जो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी पत्रकार भी इसी से जुड़े सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को और से ज्यादा घेरा जा सके, भारत के खिलाफ कुछ और चीजें छापी जा सके या उसके खिलाफ कुछ कंटेंट मिल जाए उन्हें। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो जवाब आया उसने पत्रकार की बोलती ही बंद कर दी, क्योंकि उसके बाद पत्रकार ने दूसरा सवाल तो किया ही नहीं। तो साफ तौर पर आप देखिए पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर जो है आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट बन के इसका लाभ उठाना चाहता है ताकि इसे लेकर और बड़े बड़े शब्दों में अपने पत्र जो है पेपरों में छाप सके कि संबंध खराब हो रहे हैं या फिर इसका जो है असर पड़ने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने ही ये कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पत्रकारों द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर नेट प्राइस ने साफ कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। बहरहाल मैं उन साझा मूल्यों को अच्छी तरह से समझता हूँ जो अमेरिका और भारत के दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बना देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बेहद जीवित कर दिया है और कहा कि हम उस पर पहलू पर गौर करते हैं जो हमें एक साथ जोड़ता है, ना कि उस पर जिसका कोई जो है मायने नहीं है। हम उन सभी तत्वों को मजबूत बनाने के लिए तत्पर है जो हमें साथ बांधते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ जो साझेदारी हम साझा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा असाधारण रूप से गहरी है और दोनों राष्ट्रों के उन मूल्यों को साझा करती है जो अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र के लिए सामान्य है। और यही कारण है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों पर जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पाक पत्रकार जो है सवाल कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब व्हाइट हाउस की तरफ से उन्हें मिल गया, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है और वो ऐसे मामलों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो है अमेरिका जो है कई सारे ऐसे बयान में साफ तौर पर कहता है कि वो भारत के साथ खड़ा है। इस तरीके की कोई भी टिप्पणी से वो बचता नजर आता है। साफ तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी उन्होंने जो है मुंहतोड़ जवाब जो है इसे लेकर दिया पाकिस्तान को। बता दें आपको कि बीबीसी ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए 2 भागों की श्रृंखला प्रसारित की थी। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर चौतरफा नाराजगी फैल गई और इस चुनिंदा प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया था। और इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब आपको बता दें कि हैदराबाद की विवि ने छात्रों ने जो है फिल्म देखी है। जेएनयू में भी प्रसारण की ना के बीच स्क्रीनिंग जो है रखी गई है। तो साफ तौर पर जो आप देखिएगा कि जो भी एंटी मोदी है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है या फिर जो भी केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल आप साफ तौर पर देखेंगे कि ज्यादा किया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए एक मुद्दा बन चुकी है, जिस मुद्दे के तहत वो केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और उन्हें जो है इन मुद्दों से कहीं ना कहीं अपने लिए जो है एक वो आप कह सकते हैं कि खुशी मिल रही है उन्हें कि इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री आई जो कि एंटी मोदी है
है और उसे लेकर वो लगातार जो है इसे लेकर आप कह सकते हैं कि चौतरफा नाराजगी तो है, लेकिन इसे लेकर वो इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ताकि गलत इन्फॉर्मेशन जो है चीज़ें जो है फैलाई जा सके। ओवैसी भी बोले थे, ओवैसी का भी इस पर बयान था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी पर बड़ी डॉक्यूमेंट्री जो है ब्लॉक की गई है लेकिन गोडसे पर बनी फिल्म नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी का कंपैरिजन ही गोडसे से कर दिया था। तो ये समझिए कि किस तरीके से जो विपक्ष है इस डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पाकिस्तान भी अब इस डॉक्यूमेंट्री के अब बता सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे जो है अब पाकिस्तान भी इन मुद्दों को लेकर भारत को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है और यही कारण है कि जो है इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तान में अब ये काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में भले भुखमरी हो, पाकिस्तान में भले ही आटा का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर लोगों को बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें ना मिल रही हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिल गई हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री आई है और उन्हें मोदी सरकार और भारत के अंदर क्या चल रही है इस मुद्दे से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि पत्रकार पाकिस्तान के हाल को लेकर बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान में फैली बदहाली को लेकर बात नहीं करते हैं, आटे चावल के दाम जो बढ़े हैं उसे लेकर बात नहीं करते हैं, महामारी जो फैली हुई है इसे लेकर बात नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं क्या भारत से एक उन्हें नुस्ख मिल गया है और उसे लेकर वो बात करते हैं, उसे लेकर वो सवाल करते हैं। लेकिन अमेरिका ने उन्हें जवाब देकर बता दिया है कि भारत के खिलाफ अगर आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और हम इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि भारत और अमेरिका का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और उस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।